बावन काशी में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमान धन्यवाद। महोदय, केंद्रीय विद्यालय के वार्षिक दिवस में आपका स्वागत है। श्रीमान for celebrating PM Shri Kendriya Vidyalaya Bamangachi's annual day celebration. I, Reet Manna, and my companion Akansha Kumari have the honor to stand in front of you as the anchors of today's event. We stand on the brink of a remarkable journey, one that we will embark upon together, filled with learning, experience, and enlightenment. It is traditional and symbolic to start such a great journey with the lighting of a lamp. Just as light removes darkness, knowledge removes ignorance, and so contemplating this metaphorical illumination, we launch our event. We are being graced today by the presence of Honorable Shri Sarveshwar Sahu Sir and our special guest Anand Jagmohan Rao AEE Lilwa Workshop, who we enthusiastically invite to the stage to kindle the lamp, thereby initiating our collective journey today. Our Veda says Tamso Ma Jyotirgamaya, which means हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो. Let us welcome the students of PM Shri KV Bamangachi for Veda. संकल्पमस्तु सुशारथी
धन्यवाद. This moment and this celebration is as much yours as it is ours. So I'd like to invite the team of Welcome Song. Can we invite them with a big round of applause?
for this wonderful song और मैं अपने ऑडियंस से एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाने के लिए अनुरोध करती हूँ। Now I would like to invite on stage Mr. Saptarshi Majumdar sir, PGT English, to present the annual report. Sir, please. A very good morning to highly esteemed parents, the guests and the main star attraction of today's program. Good morning to highly honorable Vice Principal sir, Chief Guest and esteemed Rita Ghosh madam and all my honorable colleagues and dear students. In today's program, highly honorable Sri Sanjeev Kumar sir, DRM Eastern Railway Howrah Division, was supposed to be the chief guest. Sir is the chairman of VMC, but because of certain engagements, sir could not be present in the program. And then the guest of honor was supposed to be highly honorable Sri Sanjay Kumar sir, senior DPO, Eastern Railways Howrah Division. Special invitee was Sri Saurabh Kumar Vishwas sir, APO Eastern Railways Howrah Division. All of them could not attend the program because of urgent call of duty. The guest of honor for today's program will be AGM Rao, AE, Lilwa Workshop. Sir will eventually come. He has not yet arrived. It is my proud privilege to welcome all the dignitaries and the parents and the staff members to PM Sri Kendriya Vidyalaya Bamangachi. To begin with, I need to point out that the school has got a new name, PM Sri Kendriya Vidyalaya Bamangachi. PM Sri stands for Prime Minister's School for Rising India. The reason for the renaming of the school is to incorporate the principles of new education policy and to see to it that the school and all its activities are directed towards the demands of the new generation and the future. Innovation, inclusive education, early childhood education and community collaboration are the many different aspects of the national education policy. And all these things are being incorporated in the educational environment of the school. This school has fully equipped physics, chemistry, computer science, junior science, language lab and library. Total students enrolled in the school are 1,520 students. Out of that, 785 boys and 735 girls. The primary section has 666 students and the secondary and the senior secondary section has 854 students. The school has a total of 49 regular staff members, out of which 42 are teaching staff. Apart from this, the school also has contractual teaching staff, coaches, counselors, special educator, doctor, contingency staff and security guards. As per the
directives of NEP, National Education Policy, Bal Vatika classes were started from the session 23-24. From this session, Bal Vatika classes were started. Total 47 students are enrolled in the age group of 5 to 6 years. The classes are managed by a teacher and a caregiver. In this session 22-23, that is the last session, 134 students appeared in class 12 and 117 students appeared in class 10 board examination. In the current session, 112 students will appear in class 12 and 107 students will appear in class 10 board exams. Some teachers also received certificates of appreciation for the performance of the students in class 10 and 12. The class 10 result was 100%. In senior secondary, class 12, in science and commerce, result was 100%, and in humanities it was 94.59%. In class 10, Arpit Kumar Burma secured 97.2%. And the second position in class 10 goes to Pustika Parwa with 97%, followed by Himanshu Sinha 96.6%. In class 12 science, Shubham Devnath secured the highest marks of 95.6%. In commerce, it was Abhishek Sharma with 93%, and in humanities, Surabhi Sarkar with 92%. In class 10, a cash award of 5,000 rupees and a merit certificate was awarded to Arpit Kumar Verma and Himanshu Sinha. And in class 12, a cash award of 10,000 and a merit certificate was awarded to Shubham Devnath and Abhishek Sharma from Kendriya Vidyalaya Sangathan. In Bharat Scouts and Guides, many students participated in Tritiya Sapan, Rajya Puruskar Testing Camp and Jamboree. A large contingent of students also participated in Ek Bharat Shresth Bharat activities and Kala Utsav and secured many prizes and positions at the cluster level and the regional level. In the field of science education, 5 students were nominated in Inspire Award, 6 students participated in NSC training program at IIT Kharagpur, and 7 models and projects made by students took part in Rashtriya Bal Vaigyanik Pradarshani science exhibition, again at IIT Kharagpur. One of the students of the school secured position in Rashtriya Bal Vaigyanik Pradarshani. In sports, the students of the school brought laurels by getting an opportunity to participate in KVS National Sports Meet and in SGFI. Total 6 students participated in KVS National Sports Meet. Out of them, 3 students got selected in SGFI. Under the able guidance of Sri Sunil Kumar PGT Computer Science and Sri Sebal Pal TGT English, a team of 3 students qualified for the national level semi-final of Navy Quiz. Navy Quiz is organized by Indian Navy for all the students of the country. Olympiads in different subjects were also organized, and many flagship days and commemorative days of the Government of India like Swachha Vidyalaya, Bhasha Sangam, Poshan Ma, Unity Day, Hindi Pakhwara, Sanskrit Pakhwara, Vigilance Week, Independence Day, Republic Day and Constitution Day, etc. were celebrated. Annual supervision was conducted twice under the leadership of Honorable Sri Amit Vaidya Sir, Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Kolkata region.
regards upgradation of infrastructure, senior computer lab was renovated and new systems were installed. Shed over the assembly stage was built to make it weatherproof. Shed over the passageway to primary building was built to make it accessible even during the rains. Bal Bhatika classroom was furnished with attractive child-centric furniture and decor. New play items were added to the children play area. Air conditioner was installed at conference hall and library, and new entrance gates were also made and installed. However, more needs to be done. The persistent problem of waterlogging needs to be solved with the support and the cooperation of various government agencies, parents, community and the sponsoring agency. PM Sri Kendriya Vidyalaya Bamangachi is marching towards a brighter future with the benevolent support of the authorities of Eastern Railways and insightful guidance of Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office, Kolkata. The school is also indebted to the community of parents for their invaluable support and cooperation. The future of every community and country rests upon the future citizens getting ready in the school, catering to the community. The school builds the foundation upon which rest the aspirations of society. I am sure that with your invaluable support, undeniable cooperation and unflinching collaboration, we at PM Sri Kendriya Vidyalaya Bamangachi will be able to live up to that dream of being the torch bearer to a new horizon of Amrit Kal, of developed India, leading the world to a more productive and positive tomorrow. We at PM Sri Kendriya Vidyalaya Bamangachi have prepared a day filled with entertainment and joy. The students, under the guidance of their respective teachers, will showcase their talents in this celebration of joy of learning through fun-filled activities, cultural expressions and creative presentations. I am sure that you will be thoroughly thrilled and you will appreciate the effort made by the students. As parents and patrons, all of you will be proud of your prodigy, polished with pedagogy, perseverance and passion. Let us bask in the sparkling glow of our children. Let us enjoy the program and let us bless them for their enchanting performance. Jai Hind. Thank you. और ये जो कुछ परिवर्तन देख रहे हैं उसका जो बेनिफिट है हमारे बच्चों को मिलता है। आइए अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे विभिन्न क्षेत्रों में जो पुरस्कार लेने वाले, प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, उसमें से कुछ कुछ पुरस्कार हम लोग यहाँ पर आज एनुअल डे के लिए हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, बाकी उनको साल भर मिलता रहता है। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारे चीफ गेस्ट सर्वेश्वर साहू सर से और रीता घोष मैडम से कि सर कृपया स्टेज पर आएँ और हमारे बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को मैं आग्रह करता हूं सर और मैडम आप दोनों कृपया मंच पर आएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी स्टोरी टेलिंग निकिता तिवारी 1A, आप सभी से आग्रह है कि प्राइज मिलता रहेगा आपके बच्चों को, आप तालियां बजाते रहे। साइंस एग्जीबिशन एक भारत श्रेष्ठ भारत के बच्चे ये गए थे रीजनल में, वहां तक क्लस्टर में गए थे और क्लस्टर से ये प्राइज जीत करके आए थे। वहां पर भी इन्हें द्वितीय स्थान मिला था। तो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं ये, श्वेता मिश्रा और आलोक झा। आप इन बच्चों को विभिन्न कल्चरल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। देन संस्कृत श्लोका रिसाइटेशन कंपटीशन, जिसमें कि रीत मन्ना 10वीं प्रथम पुरस्कार लेकर के आए थे। रीत मन्ना जो हमारे आज के एंकर भी हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। मैं आग्रह करता हूं सर से कि वह उन्हें पुरस्कार प्रदान करें। रीत मन्ना। स्विमिंग, अब आते हैं हम
स्पोर्ट्स में स्विमिंग गर्ल अंडर 40 कौसानी विश्वास HC SGFI में गई हुई है। ये SGFI में गई हुई है कौसानी विश्वास स्विमिंग। स्विमिंग गर्ल अंडर 19 साक्षी गुप्ता, ये 12 ह्यूमैनिटी, ये भी SGFI में गई हुई है। ये हमारे विद्यालय के बहुत ही होनहार बच्चे हैं। देन नेक्स्ट नेम इज परनवी सेठ, टेबल टेनिस अंडर 14 गर्ल 8B, ये SGFI में खेली हुई है, SGFI में गई है पुरस्कार ग्रहण करते हुए। और ये टेबल टेनिस अंडर 40 गर्ल परनवी सेठ। ओके। खो खो बॉयज अंडर 17 राजदीप कुमार 9A, ये KVS नेशनल में गए हुए हैं। धन्यवाद सर, HM सर और महेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आग्रह करता हूं DK प्रसाद सर से कि सर कृपया मंच पर आएं, सुनील सर से कृपया मंच पर आएं और बच्चों को पुरस्कार दें। DK प्रसाद सर और सुनील सर। खो खो गर्ल अंडर 17, खो खो गर्ल अंडर 17 नेहा शर्मा 9B KVS नेशनल, 9B KVS नेशनल। जोरदार ताली बजाएं हमारे इन बच्चों के लिए। स्विमिंग बॉयज अंडर 17 सृंजय सान्याल 10th A KVS नेशनल। बहुत ही खुशी की बात, यह बच्चे न केवल अपने परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। सृंजय सान्याल 10th A KVS नेशनल खेला हुआ है ये। देन अब आते हैं हमारे कुछ ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जिनका पुरस्कार CBSE से आया हुआ है। AISSE जो 12th में जिन लोगों ने टॉप किया हुआ है उन लोगों का पुरस्कार है। AISSE 2023 अर्पित कुमार वर्मा क्लास 10 97.2% लेकर के आए थे। अर्पित कुमार वर्मा। और हमारे एग्जाम इंचार्ज DK प्रसाद सर CBSE देखते हैं, सुनील सर, ये दोनों ही पुरस्कार दे रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, ये इन्हीं की मेहनत का रंग है। AISSE 2023 हिमांशु सिन्हा क्लास 10 96.6% लेके आए थे। 96.6%। ये हमारे विद्यालय के गौरव हैं। ऐसे ही आगे बढ़ें और मेहनत करें। हमारे विद्यालय का AISSCE, ये क्लास 12 के बच्चे जो हमारे विद्यालय का नाम जिन्होंने रोशन किया विभिन्न स्ट्रीम में हाईएस्ट नंबर ला करके, शुभम देवनाथ 12 साइंस 95.6, और अभी यह बच्चा हमारा खड़गपुर में पढ़ रहा है, IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। आप लोग जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। आपकी तालियां कमजोर पड़ जा रही हैं। AISSE SSCE 2023 अभिषेक शर्मा 12 कॉमर्स 93% लेकर आए थे ये। देन AISSCE सुरभि सरकार 12 ह्यूमैनिटी 92% लेके आए हैं। इन सभी बच्चों के लिए ताली बजाइए। और एक अंतिम पुरस्कार घोषणा कर रहा हूं जो अभी अभी हुआ है, साइंस कंपटीशन, रीजनल साइंस कंपटीशन। मैं उसमें
ये 51st रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन जो कि खड़गपुर में IIT खड़गपुर में आयोजित किया गया था, मुस्कान रजक 11 साइंस उसमें 2nd प्राइज लेकर के आई थी। सुरभि सरकार 12th ह्यूमैनिटी 92% लेकर के आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुस्कान रजक 51वां रीजनल लेवल साइंस एग्जीबिशन जो कि खड़गपुर में IIT खड़गपुर में आयोजित हुआ था, 11 साइंस की बच्ची है और 2nd पोजीशन लेकर के आई है। अब ये हमारे विद्यालय का गौरव। सर, सुनील सर, प्रसाद सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के हाथों इन बच्चों ने पुरस्कार ग्रहण किया। इसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चलते हैं सीधे आपका बिना इंतजार करवाए हुए बिना आपको इंतजार करवाए हुए अब आपको ले गया है। तो एक बार उन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए आप जोरदार ताली बजाइए। और अब मैं ये माइक हैंड ओवर कर रहा हूं आज के हमारे एंकर रीत मन्ना एंड आकांक्षा। थैंक यू सर। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने कल्चरल प्रोग्राम की तरफ। कहते हैं सर्वप्रथम प्रार्थना है भगवान श्री गणेश की। सर्वप्रथम प्रार्थना है भगवान श्री गणेश की, क्योंकि उनके साथ कृपा बरसती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। We pray to Lord Ganesh to pour upon his blessings so that this event becomes successful. We request him to protect us from any obstacle so that this event attains success and becomes memorable for all of us. Let us take this moment and pray to Lord Ganesh to give us the wisdom and the strength to learn as much as we want. गणेश की ज्योति से नूर मिलता है, गणेश की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश के द्वार, जो भी जाता है गणेश के द्वार, उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि किसी भी कार्यक्रम का आरंभ गणेश जी को सर्वप्रथम निमंत्रण करके ही करते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम भी हम गणेश वंदना से शुरू करने जा रहे हैं। Today, some really talented students of PM Shri Kendriya Vidyalaya Bamangachhi will perform a dance on Ganesh Vandana. मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इनका एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि
Moving forward to our next program. अर्ज किया है आंखें जिनकी मस्त है, आंखें जिनकी मस्त है, डांस में भी जो जबरदस्त है, स्टडीज में जिनका कोई जवाब नहीं, स्टडीज में जिनका कोई जवाब नहीं, हर काम में जो फर्स्ट है। दीदी, whom are you talking about? Guess? No guess. अब आप ही बता दो। अरे रे, these are the Balwatika students, our tiny tots of school. Today they are going to perform an action song dance. Wow, that's really amazing. तो चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इन नन्हे बच्चों का स्वागत करते हैं। मशहूर खाना है। दीदी, what are you saying? अरे वीर, I mean to say, do you know, लिट्टी चोखा is the famous food of Bihar. Obviously, Didi. And you know the traditional Bihar society has a vibrant cultural life that includes art, dancing, music, festivals and fairs.
the rich tradition of the Bihari people has been preserved. Bihar's traditional dances are quite entertaining. People sing folk songs to remember some of the significant events. The celebrations are also joyfully and happily observed. You are right, Rit. तो इसी बिहार की संस्कृति को आज पीएम श्री केवी बामनगाछी के छात्र समूह गीत के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुरवैया हौले हौले मोरी माँ के केस सवारे। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। Yeah.
अपने कार्यक्रम की तरफ। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ की इतिहास और सुंदरता लोगों को बेहद आकर्षित करती है। तमिलनाडु की वेशभूषा, खान पान, संस्कृति, इतिहास और पर्यटन स्थल इसे बेहद खास बनाती है। इस राज्य ने चोलों, चेरों और पल्लवों जैसे कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है। ये राज्य प्रत्येक राजवंश के रीति रिवाजों और परंपराओं से समृद्ध है। इसी राज्य की संस्कृति की एक झलक दिखाने के लिए आज हम आप सभी के समक्ष एक नृत्य लेकर प्रस्तुत हुए हैं। We dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fears, we dance for hopes, dance for screams. We are the dancers, we create dreams. Today, the primary students will give you the flavors of Tamil Nadu through their Tamil dance. So, without further delay, let's welcome them with a huge round of applause.
there are yet more mesmerizing performances to come. Now let our hearts get soothed by a stotra part. Now it's पहले बोले स्किट के स्किट के पार्टिसिपेंट्स प्लीज स्टेज के पीछे आ जाएं. Now it is time to call a really very talented boy from the Balvatika who has the knowledge of numerous languages. He possesses a YouTube channel named Sanskrit Learning Baby of his own where he regularly posts his recitation videos of hymns. यह बच्चा उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है जो सोचते हैं जिनकी उम्र कम होती है उनका ज्ञान भी सीमित होता है. So now I would like to call on stage Harivansh Jha for doing stotra part in Sanskrit, reminding us of the spiritual thread woven into the fabric of our schools and our nation's identity. So please cheer for our little Harivansh with big round of claps. तालियों में कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः हे आद्य गुरु शंकर पिता हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः गंभीर नाद मृदंगना धव के उरे ब्रह्मांड गंभीर नाद मृदंगना धव के उरे ब्रह्मांड नित होतनाद प्रचंडना नित होतनाद प्रचंडना नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा विषनागमाला कंठना विषनागमाला कंठना नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः तव पामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता तव सती वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चौवेद गाए संग
काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं स्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं शश्वरमदायकं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डल काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादका प्रभाविरामपादयुगोत नित्यमद्वती दैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणाशनं करालतं श्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासविन्नपदमजण्डकोशि सन्तत वृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासन अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकं धरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतशङ्गनायकं विशालकेतुदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं नीतिमार्गे पितं पुरातनं जगत्पते काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदन्यलोभकोपतापनाशनं देवयान्ति कालभैरवं मृषन्निधिं भुवं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे ओम धन्यवाद। बहुत ही सुंदर।
समक्ष एक लघु नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहा है। हमारा यह लघु नाटक भ्रष्टाचार पर है। इसके पात्र परिचय कुछ इस प्रकार हैं। दादाजी की पोती का रोल कर रही हूँ। मैं स्मित प्रसाद दादाजी के रूप में दीनानाथ चौहान बन रहा हूँ। मैं अद्रिजा बनर्जी रिसेप्शनिस्ट की भूमिका निभा रही हूँ। मैं सृष्टि सरकार भ्रष्ट अफसर रोहित चौधरी का पात्र निभा रही हूँ। मैं संचिता रे करप्टेड ऑफिसर संचिता चक्रवर्ती का पात्र निभा रही हूँ। मैं सुष्मिता मुखर्जी भ्रष्ट ऑफिसर सुष्मिता मुखर्जी का किरदार निभा रही हूँ। मैं समन प्रसाद मैं निशा कुमारी हम आम नागरिक का पात्र निभा रहे हैं की भूमिका निभा रही हूँ। लिटरली सेंस इस बात की अब कुछ बोल हो जाता है। पता नहीं क्या चलता रहता है इनका फॉर रियल। अब क्या बताओ। एक्सक्यूज मी मैम। अरे एक सेकंड रुक। हाँ जी क्या काम है बताइए। मैम पिछले 4 महीने से मुझे मेरा पेंशन का पैसा नहीं मिला है। तो इसमें मैं क्या करूँ। मैम आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। अरे तो मेरे पास क्यों आए इसके लिए। ऑफिस जाओ ना। मैम ऑफिस का रास्ता। अरे जाके उन दोनों से पूछ यार। पता नहीं कहाँ से आ जाते पूरा मूड खराब करते। एक्सक्यूज मी मैम एक्सक्यूज मी सर आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी थी। हाँ जी बताइए। दादाजी बोलिए। सर पिछले 4 महीने से मुझे मेरा पेंशन का पैसा नहीं मिला है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। अरे दादाजी आप हमसे क्या पूछेंगे। जाइए ना हमारे बड़े अफसर से बात कर लीजिए। जी उनका कमरा कहाँ पड़ेगा। आगे जाके राइट। जी। अरे कहाँ से आ जाते हैं। सर मेरा परिवार एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। जी बैठिए बताइए आपको क्या दिक्कत है। सर
मेरा नाम दीनानाथ चौहान है। अरे अरे, नाम में दिक्कत है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और बताइए। नहीं नहीं सर जी, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। कितना अच्छा खासा हमारा नाम है, दीनानाथ चौहान, में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका नाम अच्छा है। खैर छोड़िए, और बताइए। सर, पिछले 4 महीने से मुझे मेरा पेंशन का पैसा नहीं मिला है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, और मेरी पोती, इसकी तो मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई भी मैं नहीं करवा पा रहा हूँ। आप प्लीज़ हमारी कुछ मदद करिए। अच्छा, तो यहाँ जमा कीजिए। ये लीजिए, पिछले 4 महीने से तो जमा ही कर रहे हैं, पता नहीं कब पेंशन मिलेगा। आपका नाम क्या बताया आपने? जी, दीनानाथ चौहान। दीनानाथ चौहान। अरे अरे, कांग्रेचुलेशन, आप तो मर चुके हैं। मर चुके हैं? कब, कैसे, कहाँ? किस बारे में मैं क्या जानूं? यहाँ पे तो लिखा है कि आप मर चुके हैं। क्या इसका कोई उपाय तो होगा ना? अब देखिए, एक मरे हुए को जिंदा करने के लिए आपको हमारी कुछ तो सहायता करनी ही पड़ेगी। सहायता? कैसी सहायता? अरे यही देखिए ना कि आपका ये जो फाइल है, ये कितना पतला है, उड़ा जा रहा है। कुछ वजन रखिए इस पे। जी, अभी रखती हूँ। हो गया। आप भी अच्छा मजाक कर लेती है। हम इस वजन की बात नहीं कर रहे। तो फिर कैसी वजन? आखिर इस वजन का मतलब क्या है? बाकी फाइलों को देखिए, कितनी मोटी मोटी है। इसमें कुछ डालिए, इसको मोटा बनाइए, तभी तो आपका कागज आगे जाएगा, तभी तो आपका काम होगा। ये तो कैसे होगा बताइए? कहना क्या चाहते हैं आप? अरे यही देखिए ना कि इसमें कुछ कागज डालिए और इसको मोटा बना दीजिए। जी, वजन है क्या आखिर? देखिए, अगर आपको वजन के बारे में जानना है तो बाहर में तो अफसर बैठे हैं, वो आपको सब समझा देंगे। सब ठीक है, चलिए दादाजी। ये वजन का मतलब क्या था? क्या पता। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर, ये आपकी ऑफिसर वजन का मतलब ये आखिर है क्या? अरे, आपको वजन का मतलब नहीं पता? नहीं। कितने भोले हैं आप। वजन का मतलब जैसे हम आपका काम बिना कुछ लिए ही कर देंगे, हमें क्या मिलेगा? हमको भी तो कुछ चाहिए कि नहीं? क्यों, आपको सैलरी नहीं मिलती क्या? आप कहाँ सैलरी पे जा रहे हो? सैलरी तो पूर्णमासी के चांद जैसा है, आज अकाउंट में देखा, कल गायब। ये तो शूद्र का भाव है जो भगवान की देन है, और ये हमारे लिए प्रसाद समान है। और प्रसाद को कभी ना कहते हैं क्या? आप ही बोलिए जरा। ये सरासर गलत है, आप हमसे घूस ले रहे हैं। अरे नहीं नहीं, इसे घूस थोड़ी ना कहते हैं। इसे थोड़ी ही घूस कहते हैं, इसे तो हमारा सुविधा शुल्क कहते हैं। अगर देना है तो दीजिए, वरना। अगर सरकार के लोग ही ऐसे होंगे तो हमें हमारा इंसाफ कैसे मिलेगा? हम आपके विरुद्ध जरूर जाएंगे। अरे जाइए जाइए, हम भी देख लेंगे कहाँ तक जाएंगे। हाँ जाइए ना, जाइए। चलिए दादाजी। कहाँ से इंसाफ मिलेगा? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बट अरे अरे, आपको चला नहीं आता क्या? ये बहुत रेवेन्यू एरिया है, या ढंग से चले हैं, ऐसे वैसे चला नहीं जाता। और रियली मुझे नहीं लगता। पहले खुद को देखिए और अपने ऑफिसर्स को देखिए, उसके बाद बात कीजिएगा। ना ही आप में तमीज है और ना ही आपके ऑफिसर्स में। बड़े आए हमें सिखाने वाले। बोल भी कौन रहा है? हमें कहाँ न्याय मिलेगा? हमें न्याय मिलेगा दादाजी। सर क्या हुआ? सर आपका मूड बहुत खराब लग रहा है। अरे क्या ही बताओ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, सारा मूड खराब कर दिया। भगवान, एक काम करो, तुम जाओ मेरे लिए थोड़ी कड़क चाय और समोसे लेके आओ। पूरा दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। हाँ सर। एक दिन पूर्व सर ये लीजिए, आज का बस इतना ही वजन हुआ है। अरे ये क्या, इतना पतला?
हमें सब पता चल चुका है, ऊपर से कोई कुछ देना ही नहीं चाहता। इनका काम करना बंद करना पड़ेगा। जो भी हो सर, यार मूड खराब हो गया है, थोड़ा टीवी चलाओ तो। नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। जहां एक ओर आज पूरे देश में बड़ा दिन और आने वाले नए वर्ष 2024 की धूम मची हुई है, वहीं दूसरी ओर कुछ जिंदगियां ऐसी भी हैं जिनमें कोई उमंग, कोई रौनक बची ही नहीं। जी हाँ, आज के प्राइम न्यूज में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी श्री दीनानाथ चौहान जी के जीवन की व्यथा। 65 वर्षीय बुजुर्ग श्री चौहान जी को पिछले 4 महीनों से उनके हक के पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं। ऐसी स्थिति में 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरसने की नौबत आ रही है। अपनी पोती को पढ़ा पाना तो बहुत दूर की बात, अफसर, दफ्तर, कोर्ट कचहरी हर जगह से परेशान होकर अब यह दोनों दादा पोती लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मदद से जनता की सहायता मांगने आए हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या दशकों तक ईमानदारी से सरकारी नौकरी करने वाले श्री दीनानाथ चौहान जी को न्याय एवं इन काले धन के चंगुल में फंसे भ्रष्ट अफसरों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? अब जनता की आवाज ही प्रशासन को उनकी नींद से जगाने का कार्य कर सकती है। दीनानाथ जी का सहयोग देने हेतु ट्विटर पर #IStandWithDeenanath से पोस्ट करें। कैमरा पर्सन अश्वित प्रसाद के साथ मैं श्वेता मिश्रा, SMTV न्यूज। सर आप देख रहे हैं सर क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ सर, ये क्या हो रहा है सर? अरे ये क्या? नहीं, मैं अकेला नहीं फंसूंगा, तुम दोनों भी फंसोगे मेरे साथ। सर आप ऐसा कैसे कर सकते सर? सारा किया था तो आपका था ना? हाँ सर, बस हमने तो आपका साथ दिया था। तुम दोनों बात कैसे कर रहे हो जैसे कि तुम दोनों को तो कोई हिस्सा ही नहीं मिला, जैसे कि तुम दोनों तो इसमें थे ही नहीं। सर अब ऐसा मत कीजिए। हाँ सर, ऐसा मत कीजिए सर, अगले महीने मेरी शादी है सर, मेरी शादी टूट जाएगी सर, मंगेतर छोड़ के चली जाएगी, प्लीज सर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं सब बातों विश्वास नहीं होता कि कोई सरकारी अफसर ऐसे हो सकते हैं। हाँ, सरकार के अफसर ऐसे हो सकते हैं। मैंने भी इस स्थिति का सामना किया है। और तो और इन भ्रष्टाचारी अफसर का वीडियो भी इंटरनेट पे वायरल है। इनका वीडियो वायरल है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अगर सरकार के अफसर ही ऐसे होंगे तो फिर देश की उन्नति कैसे होगी? सही कहा, हमें भी #IStandWithDeenanath पोस्ट करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। धन्यवाद मैम, अगर आप नहीं होती तो हम जैसे गरीबों को हमारा इंसाफ मिलना असंभव था। अरे इसमें मैंने क्या किया है? मीडिया का तो काम ही होता है सच्चाई को सामने लाना। अगर आपने और आपके दादाजी ने हिम्मत नहीं दिखाई होती एवं वो वीडियो रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पे वायरल नहीं किया होता तो आपको इंसाफ कभी नहीं मिल पाता। धन्यवाद। देश की जनता कर रही पुकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। जब होगा भ्रष्टाचार, होगा जनतंत्र पर कड़ा प्रहार। भ्रष्टाचार है एक बीमारी, दंडित हो हर एक भ्रष्टाचार। देश की उन्नति बढ़ाए, देश को भ्रष्टाचार से बचाए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे परफॉर्मर्स के लिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले कार्यक्रम की तरफ। आशा कर
और वो क्या है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द का उच्चारण किया है और इसके लिए एक नया अर्थ गढ़ा है। दिव्यांग एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है
दिव्य शारीरिक अंग वाला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों को अब विकलांग व्यक्ति या विकलांग के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अब दिव्यांग या दिव्यांगन जन कहा जाना चाहिए। Sounds great. Now let us spotlight the remarkable abilities of our Divyang friends who will share their feelings, their emotions and strength through a skit. Let us embrace with the uniqueness and absolute beauty that our friends possess. Let's welcome them with a big round of applause. दर्शकों, कृपया हमारे प्यारे से दिव्यांग दोस्तों के लिए तालियां बजाइए। उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है आपके सामने अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को प्रस्तुत करने के लिए। पच्चीस दिसंबर आ रहा है, कभी स्नोफॉल देखो क्या? ये क्या है? मैं बस बोल और सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। एक बच्चा जिसे चलने में है दिक्कत। टिफिन में क्या लाए? ये देखो कैसे चल रहा है। ये मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं? फ्री फायर में नहीं है, तेरे को पता है? आया होगा, मुझे नहीं पता। वो पता है, देख कैसे चल रहा है, देख कैसे चल रहा है। ये भी हंस रहा है। एक बच्चा जो कि व्हील चेयर पे है और उसके दोस्त खेलते हुए। रुको रुको, मुझे भी बोल दो, मुझे भी खेलना है। अरे दोस्तों, बॉल तो दो। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैंने तो खेला ही नहीं। रुको दोस्तों, रुको। आप लोग क्या सोच रहे हो? ये लोग हार मान गए? नहीं, जिनके मन में हो विश्वास वही तो छूते हैं आसमान। तो आइए सुनेंगे अभी एक बच्चा जो कि व्हील चेयर पे था उसकी मन की बात। मैं भी चलूंगा और अपना दोस्तों बैठूंगा। आइए सुनते हैं एक बच्चा जिसको बोलने और सुनने में दिक्कत थी उसके मन की बात। मैं भी पढ़ूंगा, लिखूंगा और इस खूबसूरत मौके का सही उपयोग करके एक अच्छा इंसान बनूंगा और अपने दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहूंगा। अब एक बच्चा जिसको चलने में थी थोड़ी सी दिक्कत, उसकी मन की बात और उसके सपने के बारे में जानेंगे। मैं भी पढ़ूंगा, लिखूंगा और आगे चलकर साइंटिस्ट बनूंगा और मैंने तो अभी से ही तैयारी भी शुरू कर दिया है। मैंने बनाया साइंस प्रोजेक्ट जिसका नाम है अर्थक्वेक डिटेक्टर डिवाइस। और इनके सपनों को साकार करने के लिए भारत सरकार ने दिया साथ। 1992 में स्थापना हुई RCI का। 1995 में PWD एक्ट के तहत दिव्यांगन व्यक्ति को मिला समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। 2016 में RPWD एक्ट के तहत समाज में एक की डिसेबिलिटीज को मिला मान्यता और इक्विटी बेस्ड इंक्लूजन का हुआ प्रचार। हमारे देश में शुरू हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, जिसके तहत दिव्यांगन बच्चों को मिला अधिकार बाकी सभी बच्चों के साथ पढ़ने लिखने का।
इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत मुझे भी बराबरी करने का भरपूर मौका मिला है। खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में बहुत सारी सुविधाएं मिली है, जैसे मैंने भाग भी लिया और कामयाबी भी प्राप्त की। और खेल कूद में मैं DCCI स्पोर्ट्स एकेडमी से क्रिकेट के लिए, बंगाल के लिए क्रिकेट भी खेलता हूँ। हम लोग दिव्यांगन व्यक्ति को डिसेबल बोलते हैं, पर ये है डिफरेंटली एबल्ड। हर व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ होता है बहुत सारी खूबियाँ। हम सभी को उन खूबियों को ढूंढना और तराशना का जरूरत है। मिलते नहीं मिलते नहीं सब मोती गए समुद्र में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम अपना यह कार्यक्रम एक सुंदर गीत के साथ खत्म करते हुए Raja Ranjuti Noile Mudi Raja Suni Milit Bumrisoti Hamla Sopan Raja Hamla Raja Kusita Kori Tobu Tar Kusite Chori Hamla Raja धन्यवाद। बहुत ही मन से नहीं, इन्होंने दिन रात लगा के आपके सामने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए मेहनत किया है। सो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ मैं आप सबके सामने अपनी मन की भावना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर मन में हो हौसला और दिल में हो अरमान, कुछ भी कर दिखाएंगे हम नन्ही सी जान। तो बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की तरफ। Rick, can you tell me what's so special about the place Gujarat? Talking about Gujarat is enjoyable, and exploring its culture can be more and more fascinating. What is really special about Gujarati culture? What about the Gujarat dance forms? Gujarati culture is rich and diverse. The vibrancy in the folk dances, especially Garba, festivals such as Navratri and Makar Sankranti, and foods like Dhokla, Fafra is truly soulful. The culture of Gujarat is a vibrant and it is famous for its true colors of rich history and traditions. The state is a blend of many religions like Hinduism, Islam, Jainism and Buddhism. Also, Gujarati culture blends in arts, beliefs, customs, languages, technology and values. So it's time to unfold the essence and beauty of Gujarati dance and brace ourselves with the cultural diversity of our nation. So get
nani red bari tagli na to para tarat mare hale sao happy jai toi deni himmatan am nahi hape evo kara to kalasi evo hare no kalasi evo kara to kalasi evo hare no kalasi godilo 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 પોતાના જગારિયામાં પોતાની જે ડૂબકી થી જાતનું અમૂલ મોતીલો What a lovely performer है। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। Thank you. With this, the cultural programs come to an end. हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद रीत और आकांक्षा इतनी सुंदर एंकरिंग के लिए। कल्चरल प्रोग्राम के बाद हमारा एक ओवरऑल प्राइज होता है, विनर हैं उसकी घोषणा मैं करूंगा। वो शिक्षक, हाउस इंचार्ज, हाउस मास्टर्स अपने हाउस के बच्चों के साथ यहाँ आएंगे। मैं आग्रह करता हूँ हमारे विद्यालय के आज के मुख्य अतिथि हाउस के मास्टर और हाउस के सारे टीचर्स उसके साथ आएंगे। तो प्राइमरी से जो हाउस विनर हुए हैं, मैं मुख्य अतिथि महोदय से आज्ञा करता हूं, मैडम से कृपया मंच पर आए, वो ट्रॉफी उनको दी जाएगी। प्राइमरी के जो हाउस विनर हैं अशोका हाउस, तो अशोका हाउस प्राइमरी के टीचर अपने हाउस के साथ यहाँ मंच पर आए और ये हाउस विनर ट्रॉफी लें। और रनर अप रहे हैं टैगोर हाउस, प्राइमरी में फर्स्ट रनर अप रहे हैं टैगोर हाउस। तो टैगोर हाउस के हाउस मास्टर और टीचर्स बाकी फर्स्ट रहा है वो है रमन हाउस। रमन हाउस के बच्चों से, हाउस मास्टर से जल्दी सर, ये हाउस मास्टर सारे जल्दी से यहाँ इस साइड आ जाइए सर आप लोग। हाँ, बहुत बढ़िया। ये इस हाउस ने बहुत मेहनत की है। डीके प्रसाद सर ने, सहवाल सर ने, सीताराम सर ने। ये बहुत सुंदर बच्चों के साथ ऐसे ही आप लोग। Here, respected parents, respected teachers, and all the participants and my dear children. So it is my proud privilege to have chance to address this gathering. First of all, I would like to congratulate all the prize winners and congratulate all the participants. Today's children is future citizen. Today's children is future citizen. As you know, our institution is one of the pioneer educational institution in India. So we are preparing here the future citizen, means we are shaping within this campus, we are shaping the future of India. We are preparing the students both in academic, co-curricular and cultural activities. As you are witnessing the programs, some have received prizes, some have shown their talent, creativities in different forms, dance forms, mime forms. So this is a right platform
to give the chance to show the creativity and the talents. Students, they are focusing in academic throughout the year. Along with, we are organizing different activities like sports, CCA activities, annual function, only to give the chance to the students so that they can show their talents. And this is the platform where they grow. And in the long run, this will help the students to be a part of different organizations, different activities, different events in the national level and international level. So this is a platform where we are giving the chance, and we cannot ignore the importance of teachers and the parents. So teachers, they have given their best to make this program successful and prepare the students for different activities, and they recognize the talents of the students. Accordingly, they prepare. Simultaneously, the parents also have given maximum support so that we reach at this stage, and in this concluding stage. So thank you all the parents, thank you all the teachers, and thank you all the participants. Thank you all. Thank you, sir. I would like to call now for vote of thanks our senior teacher Rita Ghosh ma'am. Yes, good afternoon to all of you. So it is now the time to experiment right and safely done the program, and students have participated with full enthusiasm. I would like to thank our Kendriya Vidyalaya Sangathan, who is to give proper support to celebrate this type of function every year, because this is very compulsory that we must have our annual function. On that only we have arranged this annual function, that is the celebration, in the same format which we used to follow every year. I would like to thank our principal, sir, who has permitted us to celebrate this within a very short period of time. He said, no, we have to do it. So thank you, sir, for giving that permission. Our student and the teachers, so I must thank all the teachers also who have worked hard, planned the program properly, to do it in the way we have seen. It's a marvelous program we have seen. So teachers must be expressed, that is, we should give all the teachers, that is, a thanks. I would like to thank our student for their incredible performance, and I think they really need this worthy appreciation. I would like to thank all parents who have come here and participated in this program. I will like to express my thanks to all the people who are behind the stage, helping out in various ways, even the mic system, the light system, and dressing one of the student, everything. I know that each and the contribution of each and every person needs to be appreciated. So I would like to thanks to all of them. So thank you. Let's hope that next year we'll have a program which will be more better planned. Now from tomorrow it is holiday. I think after this this type of program, now you will be, because after the holidays you will have exam. So study well and enjoy your holidays with your all study program on. Thank you very much. Thank you, ma'am. All the teachers are requested to please come on the stage for national anthem. All the respected teachers, you are requested to please come. सावधान, राष्ट्रगान के लिए तैयार होंगे, तैयार हो।
शुरू करेंगे, शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग।